And thank you very much for allowing me to speak on this bill. Before I call upon the Honorable Minister to reply the discussion, lawmaking is a very serious business. We alone are entrusted with lawmaking. And there are two different categories. If Parliament, which is the ultimate architect of the Constitution, makes some change in the Constitution, that is final. There can be no intervention from any agency, be it executive or judiciary. But if there is a legislation, judiciary has a method of intervention by way of judicial review, because every legislation has to be in accordance with constitutional prescriptions. So things are very categorical. To the extent a constitutional provision is concerned, any intervention, Honorable Minister, any intervention with respect to constitutional provision emanating from Parliament is not acceptable. Parliament is the only reflector of the opinion of the people. This is by way of a structured platform. People of this country indicate their mindset through the ballot and send their representatives here. I'll just tell you, we must be quite serious about it. I'll just read one provision of the 10th schedule of Indian Constitution, and that will surprise all of you. And that is 10th schedule, clause 6. Decision on questions as to disqualification on ground of defection. But if you go to proviso, provided that where a question has arisen as to whether the chairman or the Speaker of a House becomes subject to disqualification, the question shall be referred for decision of such member of the House as the House may elect in this behalf, and his decision shall be final. Now just reflect, where is the question of disqualification of Chairman Rajya Sabha? So we have to be extremely careful. This was drafted at a time, it was just before we came to power in 1989. So it's a serious business. I will urge all of you that we are the ultimate custodians of the rights of the people, sovereignty of the people, by ensuring that we act diligently, vigilantly, with thorough preparation, make appropriate inputs, and do not permit any incursion whatsoever. What is our mandate, and that is ultimate authority to ensure constitutional compliance and be the architect of Constitution. Any intervention in this area should be repelled. There was an occasion where we discussed an important bill. I was looking right, left, and center that someone would reflect, can the highest court of the land make an interim legal arrangement? That is 100% mandate of this House. I am sure we will engage more seriously when it comes to lawmaking. Honorable Minister, Sri Arjun Ram Meghwal, to reply the discussion. These reflections were because the Honorable Minister is handling the Department of Law and Justice. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, ये जो द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल जिस पे आज ये महान सदन चर्चा कर रहा है,
इस बिंदु पर या इस बिल पर 8 लोगों ने अपने विचार रखे। GVL नरसिंह राव जी से लेकर के और P विल्सन तक सबने विचार रखे। इसमें हमारे तंबी दुराई जी ने भी विचार रखे और महेश जेठमलानी जी भी, नरेश बंसल जी, KR सुरेश रेड्डी जी, मस्ताना राव बीडा जी, मुजीबुल्लाह खान, सब ने अपने विचार रखे, सब ने अपने सुझाव भी दिए और सब ने ये माना कि जो कानून जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है उनको समाप्त कर देना चाहिए। सब ने इनका बिल का समर्थन भी किया। सभापति जी, ये एक विषय है जो जनरल एक परसेप्शन भी है, एक सिद्धांत भी है, एक प्रिंसिपल भी है कि मनुष्य की प्राकृतिक मौत हो सकती है। मनुष्य उसकी एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसे एज आई 100 साल, 80 साल, 70 साल, तो एक प्राकृतिक मौत हो सकती है। लेकिन को अधिनियम है, उसकी प्राकृतिक मौत नहीं हो सकती। उसको अगर किल करना है तो संसद में ही लाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बार बार आकर के यहाँ किल करने का प्रयास कर, क्योंकि आवश्यकता नहीं है ना ऐसे बिलों की, लेकिन बार बार आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा एक साथ आ जाओ, बार बार बताओ। कुछ लोगों ने सनसेट क्लॉज जैसे सुझाव भी दिए, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया ऐसी है, ये नेचुरल डेथ का विषय नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से पास है, कुछ राज्यों की विधानसभाओं से पास है, वो संसद में आना ही पड़ेगा। देखिए, हर बिल में एक एक्ट का नंबर होता है सर, हर बिल में एक्ट का ईयर भी होता है, कौन सा लेजिस्लेचर लेके आया, किस विधानसभा ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, इसका उल्लेख भी होता है। और जिसका पुरुषोत्तम जी रूपाला साहब बार बार जिक्र करते हैं, वो इनेक्टिंग फॉर्मूला भी होता है। तो ये सारी, और रिपब्लिकन ईयर भी उसका होता है। तो ये सारी चीजें होने से हम सबको एक साथ लेके आ जाएं, ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। सनसेट क्लॉज के बारे में आपने जिक्र किया, इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। जो बिल था ओरिजिनली, इसमें 65 ऐसे अधिनियम थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक ऑफिशियल अमेंडमेंट के द्वारा ये 11 ऐड हुए हैं, तो टोटल 76 ऐसे कानून जिस बिल की हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी 2014 में शासन में आए, मोदी जी के आने के बाद 1486 हम पहले ही ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनको समाप्त कर चुके हैं। 76 ये जो आज मान सदन इसको पास करेगा, तो टोटल 1562 ऐसे कानून जो जिनकी आवश्यकता नहीं है वो समाप्त हो जाएंगे। तो जो नरेंद्र मोदी जी का एक प्रिंसिपल था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे नागरिकों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का भी मार्ग जो है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे बिल थे जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था आपके आने से पहले, कि जैसे कुछ ऐसे बिल थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और नागरिकों को तंग करने के अलावा कोई काम नहीं। जैसे पहले मैंने टेलीग्राम वायर का जिक्र किया कि कोई रख नहीं सकता, अब टेलीग्राम वायर नाम की जैसी कोई विषय है बचा ही नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी बची नहीं है। ऐसे ही एक शुगर कैन का विषय था कि शुगर कैन को हम असेंशियल कमोडिटी जैसा मानेंगे। अब असेंशियल कमोडिटी एक्ट आ गया, उसमें चीजें डिफाइन होगी, शुगर कैन का उसमें विषय नहीं रहा। तो ऐसे अननेसेसरी के एक्ट थे, लेकिन इस पर सोचा नहीं किसी ने। हम अगर यूपीए कालखंड की बात करें 2004 और 14 में, साहब ऐसा एक एक्ट जिसकी प्रचलन में किसी आवश्यकता नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ। और मोदी जी के आने के बाद 1562 ऐसे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए नागरिकों को सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी से कर रहे हैं। जैसे मेटल कॉर्पोरेशन है, अब मेटल को एक्वायर करना अपराध, मेटल कॉर्पोरेशन का एक इसमें मैं लेकर आया हूं। तो अब इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनका जिक्र अलग अलग सदस्यों ने किया है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री का काम होता है,
कुछ एक्ट स्टेट के होते हैं, कहीं पर स्टेट्स की ओपिनियन भी ली जाती है, इन सब में टाइम लगता है। लेकिन ये भी एक काम था। मोदी जी से पहले इस पे तेजी से विचार नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद लगा कि भाई ऐसा ये भी एक काम है, अननेसेसरी के एक्ट क्यों पड़े हुए हैं। इसलिए मैं जो कई बार कहता हूं कि जो पंच प्रण है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लाल किले की प्राचीर से भारत को विकसित भारत बनाना, मानव केंद्रित, ईज ऑफ लिविंग, यहां भी एक विषय आता है। गुलामी का कोई भी अंश हो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये कानून जो गुलामी के पीरियड के बने हुए हैं उससे हमें मुक्ति मिल रही है, वो भी पंच प्रण के माध्यम से हमें उसमें जो है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण का विषय है, उस दिशा में भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सनसेट क्लॉज के बारे में जो पी विल्सन साहब कह के गए, मैं ये कह सकता हूं कि सनसेट क्लॉज इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सनसेट इज बीइंग कंसिडर्ड एंड कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो आगे उस पर क्या विषय आएगा हम आपको बता देंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखती है, इसलिए हम ऐसे एक्ट जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो ठहरे पानी की तरह है, हो गए हैं, उन्हें रिपील करने का काम आज इस बिल के माध्यम से मान सदन के समक्ष मैं लेकर के आया हूं। मैंने पहले भी कहा था, अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी थक जाता है, वह तो अपनी काई से, काई उसके ऊपर ही होती है, लेकिन एकदम ठहर गया पानी तो वो काई से भी थक जाता है। तो ये ऐसे कुछ कानून थे जो खुद भी थक रहे थे, नागरिकों को भी थका रहे थे। कुछ विषय जुडिशरी से संबंधित भी आए, कुछ टिप्पणी आपने भी की, और कुछ जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर के कि सभी सामाजिक। माननीय मंत्री जी, we all are proud of our institutions. There are three main organs: जी, the legislature, the executive, the judiciary. जी, The executive has performed phenomenally. The world has recognized it. We noticed it during G20. We have seen infrastructure growth of unbelievable dimension. Alleviation of poverty has taken place. So executive is performing very well. These are not political issues, they are above politics. Our judiciary has a robust infrastructure, known for its independence globally. Our judiciary recently has taken several innovative steps. Even I have directed our secretariat to get in touch with the Supreme Court Secretariat about translation. Our judiciary has attained milestones by making available judgments in the language people understand. Many things have happened. There will always be issue between organizations because we are in a dynamic world. Those issues have to be settled. Some issues may arise from this side, some issues may arise from executive, some issues may arise from judiciary. And therefore, this parliament, this august house, the upper house, is committed to giving highest respect to all the organs, because only in togetherness, in tandem, we can achieve success of our democracy to a higher level and take it to 2047 as a developed nation of the world. Therefore, the intent is that if there are difference of opinions, that is just a perception which can be smoothly ironed out. And I have no doubt with a minister like him who has seen the executive, he has operated legislature also by virtue of being district magistrate. You have dual powers. So he is eminently suited and belongs to a category of Dr. Ambedkar. So he is the right person, a right platform to smoothen out if there are any rough edges.
but we take pride in all our institutions. It is this House that has done justice to one half of humanity by providing for reservation to women. It is this House that did away with the temporary provision of Article 370. Historic, epochal events have taken place. So it is from that perspective, the honorable member made some reflections. We have to see it in that perspective. Honorable Minister. सर, आपके जो ऑब्जर्वेशन थे, आने वाले समय में जब कभी भी इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कंसल्टेशन के प्रोसेस में, आपके जो अवेलेबल सुझाव हैं उनको हम उचित प्लेटफॉर्म पर ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि सामाजिक प्रतिनिधित्व सब वर्गों का जुडिशरी में होना चाहिए। ये आज के इस ऑब्जर्वेशन का मैं सार समझ पा रहा हूँ। देखिए, जो भाषा का विषय आपने रखा, एक फंक्शन में राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हम सब लोग थे, उस समय ये भाषा का विषय आया कि ऐसी भाषा में आपके जजमेंट होने चाहिए। आप जनता, आप भी तो जनता के लिए हो ना, सब हम जनता के, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहला वर्ड वही लिखा हुआ है। तीनों अंगों के लिए भी वही सुझाव है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, नागरिकों के लिए काम करते हैं। तो सरल भाषा में होगा, सब लोग समझेंगे। तो मुझे लगता है जुडिशरी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया है और इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। एक ई कोर्ट के लिए भी अच्छा काम हुआ है। अगर आपके सेक्रेटरी जनरल साहब, अगर उनके सेक्रेटरी जनरल, उनका भी पद नाम सेक्रेटरी जनरल हो गया है, हाँ, तो उसमें आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुविधा रहेगी। दूसरा एक विषय और, आपने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम लिया, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब का चित्र नहीं था, मतलब प्रतिमा नहीं थी। तो वो अगर 14 अप्रैल या 6 दिसंबर का फंक्शन कहीं मनाते थे तो चित्र फोटो रख करके मनाते थे। अब पहली बार जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने 1923 में अपनी वकालत शुरू की थी, उनके वकालत के 100 साल पूरे होने पर वकालत की ड्रेस में सुप्रीम कोर्ट के मेन लॉन में उनकी प्रतिमा लग गई। ये भी बहुत बड़ा विषय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दे सकते हैं आपके माध्यम से। मैं समझता हूं कि चर्चा काफ़ी ठीक हो रही है। तो ये जो द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल जिसके बारे में चर्चा हुई है, उसको पास करने का मैं अनुरोध करता हूं सर्वसम्मति से। थैंक यू। The question is that the repealing and amending bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 4, eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 4 are adopted. First schedule and second schedule and third schedule, eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. First schedule, second schedule and third schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Arjun Ram Meghwal to move that the bill be passed. Honorable Chairman, sir, I move that the bill as passed by Lok Sabha be passed. Motion moved that the bill be passed.